ही है। गोयल साहब शुरू कर देना सर। बिल्कुल सर। कोहली साहब ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है, करो सर आप। ठीक है सर। हमने घंटे Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar in amendments in Director Report, Auditor Report, changes in Schedule 3rd to the Companies Act. And on this subject, our CS, Company Secretary, Divesh Goyalji with us. As there is no need to introduce our Goyal sir. Goyal is again and again addressing our members on our request. But for the new members, I would like to introduce him briefly. He is a fellow member of ICSI and having intense expertise in corporate law for the last 8 years. He is a young and progressive practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuisance of corporate law. Being a researcher at heart, he has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act 2013 to keep it pace with the latest changes and critically dissect the implication of various provisions of the new act. He has co-authored the company law premier book published by the Institute of Company Secretary of India. He has also added a lot to the issuance of various guidance notes by ICSI. He was a member of the Task Force Committee and Research Committee for 3 years. He is a member of various committee of the NIRC of ICSI. His articles have been published in ICSI magazine and are available on various popular websites relating to corporate law. He has deliberated at several forums on corporate law throughout the country over the last 2 years. He has deliberated for more than 150 seminars and penned approximately 700 articles on multiple topics of corporate law. This is a brief introduction of today's our star speaker CS Divesh Goyalji. With this, I again welcome you, sir. I welcome Kohli sir, Jagjeet ji, and all the attendee. And with this, over to you, sir. Goyal sir. Thank you so much, sir. First of all, definitely I would love to say thanks to Rajesh ji and Pusa Road Study Circle कि आप बार-बार मुझे opportunities देते हैं to discuss the new things, the new amendment with the members. And बोल सकते हैं कि आप पुसा रोड के साथ मैंने काफी सारे फिजिकल सेमिनार्स भी किए। अब जब से कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई तब से हम रेगुलर वेबिनार्स भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग कनेक्शन बन चुका है अभी स्टडी सर्कल के साथ। सर तो जब भी राजेश जी का आपका जब भी आता है तो बस मेरा फर्स्ट होता है कि आप बताओ कब रखना है, आई विल सेव माय टाइम अकॉर्डिंगली, हम प्लान कर लेंगे। तो दूसरा आजकल अमेंडमेंट्स का भी तो सिलसिला ऐसा स्टार्ट हो गया है कि रेगुलर बेस पे इतने अमेंडमेंट आते हैं कि उनको अनटिल अनलेस उनको अगर हम नहीं रेगुलर बेस पे डिस्कस करें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारे अमेंडमेंट्स को इंप्लीमेंट कर पाए। और रेगुलर बेस पे व्हिच आई हैव सीन कि एज अ प्रोफेशनल की वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर अटेंडिंग दिस वेबिनार, मिनिस्ट्री बहुत सारे अमेंडमेंट कर रही है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं कि दे आर पुटिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। मतलब इन अमेंडमेंट्स के थ्रू वो ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। जैसे लास्ट ईयर नई कारो रिपोर्ट के जो नए डिस्क्लोजर्स आए थे which will be applicable for the financial year ended 31st March 2021, वहां पे भी यू कैन सी कि काफी सारे अमेंडमेंट उन्होंने किए कि पर्टिकुलर सेक्शंस का रेफरेंस देकर दे आर आस्किंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑडिटर्स। So they are putting the responsibility on the auditors with every passing of day. They are increasing the responsibilities. उसी के साथ now they have amended again. They have amended the disclosures in the auditors report, disclosures under the financial statement. So regular base पे इतने ज़्यादा amendment आ रहे हैं कि as a chartered accountant, as a statutory auditor, it is very important for us कि हमें उन amendments का impact पता हो, हमें उन amendments के बारे में पता हो। So राजेश जी सबको opportunity दे रहे हैं to understand those amendments, to learn from those amendments, because as a professional हमें सिर्फ एक act नहीं study करना है। We have to look for the amendment under GST, we have to look for the amendment under income tax, simultaneously we have to look for the amendment under the Companies Act also. So because इतने सारे amendment हैं and everything, so I feel this webinar is the best concept to discussion on these things, because ना तो हमें आने जाने में time waste होता है, just we have to sit in front of our computer, we have to learn. So COVID period ने बहुत कुछ सिखाया है
ये वेबिनार भी मैं बोल सकता हूँ कि हम प्रोफेशनल्स को कोविड पीरियड की देन है कि आफ्टर दिस कोविड पीरियड वी ऑल आर द हैबिचुअल ऑफ दिस वेबिनार, और इट्स लुक गुड कि हम 150-200 लोग एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बैठ के डिस्कस कर रहे हैं चीजों को. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो रेगुलरली पुसा रोड के सभी मोस्टली सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेरे भी लास्ट वेबिनार अटेंड किए होंगे पुसा रोड के साथ. तो आवर कंसेप्ट शुड बी कि व्हाटएवर क्वेरी यू आर हैविंग, जो भी क्वेरी हो प्लीज साइमल्टेनियसली यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स, बिकॉज़ साइमल्टेनियसली क्वेरीज पूछते हैं तो इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन टू सॉल्व देयर डाउट्स. और डेफिनेटली लाइक ऑलवेज मैं तो क्वेश्चंस पूछता ही रहूंगा बीच में, एंड आई वुड डेफिनेटली रिक्वायर कि आप सब भी उस पे रिप्लाईज दें. As we are 150 members are here, so I request all of you to whatever question I am asking, please try to reply, because no one is here to judge us. It's just कि हम replies देंगे तो we can make it little interactive this session. So let's start our today's topic. Recently अगर हम amendment की बात करते हैं तो amendment की speed काफी increase हो गई है last Sunday days में. Even in this month of March itself, in the last month, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो टोटल 9 नोटिफिकेशंस आए हैं. 4 नोटिफिकेशंस तो आए हैं एक अलग-अलग सेक्शंस में अमेंडमेंट के, और 5 अमेंडमेंट इन रूल्स आए हैं जिनके थ्रू 5 अलग-अलग चैप्टर्स के रूल्स में उन्होंने अमेंडमेंट किया है. और उसी के साथ लेटेस्ट में मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर. दैट इज अ न्यू कांसेप्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, और वी कैन से दैट इज अ न्यू step of the ministry toward the e-governance, toward the compliance of law. So जो सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर मिनिस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है, ये सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर पे मैं 5 मिनट आप लोगों को अपडेट करूंगा, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल हम बहुत सारी चीजें रेगुलर बेस पे सर्टिफाई भी करते हैं, अप्रूव भी करते हैं, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस. कंपनीज एक्ट में वी नो देयर आर 2 टाइप ऑफ फॉर्म. एक है एसटीपी मोड के फॉर्म, अदर है नॉन एसटीपी मोड के फॉर्म. एसटीपी होता है स्टेट थ्रू प्रोसेस. उस केस में क्या होता है, हमने फॉर्म फाइल किया, उस फॉर्म को कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं चेक कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं चेक कर रहा है, हमने फाइल किया और डायरेक्टली फॉर्म अप्रूव हो गया. वी जस्ट हैव टू फाइल इट एंड पे इट एंड द फॉर्म विल बी अप्रूव्ड. दोस आर द एसटीपी मोड फॉर्म. 2006 से जब से एमसीए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ एसटीपी मोड फॉर्म्स. इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है एओसी 4, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल करते हैं, फिर एमजीडी 7 जो एनुअल रिटर्न किया है, ये सभी फॉर्म्स एसटीपी मोड में है. मींस हमने जस्ट अपलोड किया और इमीडिएटली ये फॉर्म्स अप्रूव हो जाते हैं. तो इन सभी फॉर्म्स पे कोई चेकिंग नहीं थी, इनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं थी. तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने एक नई कमिटी एस्टैब्लिश की है, सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर. दिस सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर अप्रोक्सीमेटली जो इसमें एम्प्लॉइज है मिनिस्ट्री के, मोस्टली आर द प्रोफेशनल, whether the chartered accountant or the company secretary, because according to me chartered accountant और company secretary से ज्यादा कोई भी compliance of the company नहीं समझ सकता है. तो they have appointed those person to scrutiny those STP mode form. तो आज तक जो STP mode form scrutinize नहीं होते थे, चेक नहीं होते थे, now they are having a special team. उस टीम का काम ये है कि एसटीपी वाले फॉर्म्स को चेक करना, रैंडम बेस पे दे हैव टू चेक. जिस कंपनी में रेगुलर बेस पे कोई डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, शेयर होल्डर चेंज हो रहे हैं, ऐसी कंपनीज को चेक करना, या जिस कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्म फाइल हो रहे हैं या बहुत ज्यादा कंप्लायंस हो रही है, ऐसी कंपनीज को चेक करना, या व्हाटएवर कंप्लेंट दे हैव रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल चेक. तो अब से एसटीपी मोड में फॉर्म फाइल करना भी बहुत रिस्की है. So before certifying any form, please make sure कि everything is correct. Proper compliance has been done. Proper compliance checking has been done. Because अगर हम नहीं check करेंगे, then ministry will check it. And if they found any non-compliances, it will be difficult for us as well as the corporates. So this Central Security Cell is also one of the amendment of the March 2021. March 2021 में they have already established this Central Security Cell. So please make sure कि next time whenever we are filing any form or next time we are certifying any form, we should be very careful about the certification of the things.
So as I said कि total 9 amendment आए थे. The center security cell amendment was 9+1, total 10 amendment in a month. जब से 2021 start हुआ है, almost 3 months has been passed, and in last 3 months almost 30 amendment has been came under Companies Act. So I must say it is very important for us as a professional कि at least हम deep में नहीं जाना चाहते या हम deep में नहीं जा रहे हैं, still at least हम monthly जितने amendment आते हैं, at least we should read that amendment, we should understand the amendment. इसी purpose से मैंने अपने ग्रुप्स में एक मंथली बेस पे आर्टिकल भी शेयर करना शुरू किया है कि इस मंथ में पर्टिकुलर मंथ में क्या-क्या अमेंडमेंट्स आए हैं इस मंथ में. सो इफ एनीवन वांट दोस आर्टिकल्स आई विल शेयर विद राजेश जी आल्सो, कि आप सभी को शेयर कर सकते हैं कि मंथली अमेंडमेंट क्या है कंपनीज एक्ट के. बिकॉज़ इफ वी फाउंड ऑल द अमेंडमेंट एट वन प्लेस, इट इज इजी फॉर अस आल्सो टू स्टडी एंड रीड दोस अमेंडमेंट. सो मार्च मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, that is amendment in schedule 3 and auditor report and directors report. इन amendment को डिस्कस करते वक्त फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे रिक्वायर्ड है, that is required interaction with all of you, because you all are the professional chartered accountant, you all are the working as a statutory auditor, internal auditor, and different positions on the companies. So please, whatever inputs you are having regarding this topic while we are discussing, or whatever questions you are having, ask us simultaneously, so that उस question का benefit हम सभी members भी ले पाएंगे. Ministry of Corporate Affairs of India issued the notification on 24th March 2021. जो ये amendment notification पास हुई है, ये 24th March 2021 में पास हुई है. So 10 days before this amendment has been passed. ये amendment किस चीज से related है? Amendment number 1 is the schedule 3 of the Companies Act. Amendment number 2 is the company's accounts rules. Amendment number 3 is the company's audit and auditors rules. The major purpose behind this required, the major reason behind this amendment, they have increased the disclosure requirements in financial statement, in board report, and in auditor report. इन अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर दिए, उन्होंने बोर्ड रिपोर्ट में अमेंडमेंट कर दिए, उन्होंने ऑडिटर रिपोर्ट में अमेंडमेंट कर दिए, और कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज उन्होंने इम्पोज कर दी है. So we were today's webinar, we are going to discuss these three things: financial statement, board report, and auditor report. इन सभी को डिस्कस करने के बाद, if we having some time, so I will discuss one more thing, that is e-form CSR1. अभी मिनिस्ट्री ने 1 अप्रैल को एक फॉर्म भी लॉन्च किया था CSR वाली इंस्टीट्यूट CSR के लिए, कि जो भी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी CSR का एक्सपेंडिचर करती है उनके लिए. तो अभी लेटेस्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है प्रोफेशनल का कॉर्पोरेट कोर्स में. तो वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट आल्सो आफ्टर दिस अमेंडमेंट. तो जब भी कोई अमेंडमेंट आती है, तो सबसे पहला पर्पस होता है कि व्हाई दिस अमेंडमेंट केम अंडर दिस लॉ. सो अगर इन तीन अमेंडमेंट्स को रीड करते हैं, तो पहला पर्पस जो लगता है, स्ट्रिंजेंसी इन कंप्लायंसेस. मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस को थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया है. अगर जनरल लैंग्वेज में बोल सकूं, तो कंपनीज के ऊपर अपनी ग्रिप इंक्रीज किया है, कंपनीज पे अपनी ग्रिप टाइट किया है, कि जितने ज्यादा डिस्क्लोजर होंगे उतना इजी होगा फॉर टू फाइंड आउट बाय द मिनिस्ट्री कि किस कंपनी ने क्या नॉन कंप्लायंस किए हैं और किस कंपनी ने प्रॉपर्ली कंप्लायंस किए हैं. एक तो कंप्लायंसेस में स्ट्रिंजेंसी आई है, एंड दे हैव एडेड न्यूमेरियस डिस्क्लोजर्स, न्यू डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे न्यू डिस्क्लोजर्स डाल दिए हैं. डायरेक्टर रिपोर्ट में भी बहुत सारे न्यू डिस्क्लोजर्स डाल दिए हैं, ऑडिटर रिपोर्ट में भी बहुत सारे न्यू डिस्क्लोजर्स आ गए हैं, और सेम लाइक बोर्ड रिपोर्ट में भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स नए डाल दिए हैं. और इन सब के पीछे, अगर इन सबको अभी हम रीड करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, इफ यू ऑल विल सी द मेजर रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट, जो सबसे मेन रीजन है इन अमेंडमेंट्स के पीछे, वो है ट्रांसपेरेंसी.
Ministry as on date want in transparency in every document, transparency in every annual filing. Because हमें पता है जितने भी तीनों डॉक्यूमेंट हैं, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बोर्ड रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, these three documents are mandatory to file with ROC. और ये ROC के पास जो फाइल होते हैं वो होते हैं AOC 4 फॉर्म में अटैच होकर. AOC 4 फॉर्म इज अ पब्लिक फॉर्म. AOC 4 पब्लिक इंस्पेक्शन आप कभी भी किसी भी कंपनी का देख सकते हो. और AOC 4 में ये तीनों चीजें अटैच होती है. तो वी कैन सी कि ये तीनों चीजें अगर इस पर डिस्क्लोजर्स बढ़ जाते हैं तो it will increase the transparency in compliances. तो जो सबसे मेजर रीजन है, सबसे मेजर पर्पस है बिहाइंड दिस अमेंडमेंट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है एंड फॉर दैट दे आर डूइंग द अमेंडमेंट. सो मिनिस्ट्री ने 3 नोटिफिकेशन पास किए हैं. तीनों नोटिफिकेशन ही 24 मार्च को पास हुए हैं, 24 मार्च 2021. फर्स्ट इज कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर अमेंडमेंट रूल्स. इसके थ्रू उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोजर चेंज किए हैं. सेकंड इज कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स. Through company's account amendment rules, they have amended the provisions in the director's report. Third is amendment to Schedule 3. What is Schedule 3? Schedule 3 Companies Act में क्या होता है? Schedule 3 is the process. Schedule 3 is a format which is telling us what are the disclosures we are required to give in our financial statement. तो कंपनीज एक्ट के थ्रू जो भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो P&L हो या कैश फ्लो, वो गवर्न होता है शेड्यूल 3 से. फर्स्ट थिंग, अभी हमने डिस्कस किया 3 अमेंडमेंट, ऑडिटर्स में, अकाउंट्स में, शेड्यूल 3 में. 24 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया उसमें मेंशन किया कि ये तीनों अमेंडमेंट्स, all these 3 amendments shall came into effect from the 1st April 2021. अभी ऑडिट रिपोर्ट के डिस्क्लोजर के लिए मिनिस्ट्री ने बोला है 1 अप्रैल को एक अमेंडमेंट रूल आया. उस अमेंडमेंट रूल में मिनिस्ट्री ने मेंशन किया कि ऑडिटर्स रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल ना होकर 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगी. तो मिनिस्ट्री ने 24 मार्च को अमेंडमेंट दिया और डायरेक्टली वो प्रोफेशनल्स पे या कॉर्पोरेट्स पे प्रेशर नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बोला जो ऑडिटर रिपोर्ट के डिस्क्लोजर है वो अमेंडमेंट आपका 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, ना कि 1 अप्रैल 2021 से. अब इसमें क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल ईयर कंपनी का खत्म होता है 31 मार्च 2021 को. बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट ये सब साइन होते हैं 25 अगस्त 2021 को. अब क्वेश्चन आता है whether company have to give effect of these amendment in the financial statement or director report. Now I would request all the participants please answer this question. बिकॉज ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी चल रहा होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी आपसे पूछा होगा, और अभी आप आने वाले दिनों में जब फाइनेंशियल डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे तब भी आपको इस पॉइंट को टेक केयर करना है. तो मेरा क्वेश्चन है, जो अभी 31 मार्च 2021 फिनिश हुआ है और ये अमेंडमेंट नोटिफाई हुए हैं 1 अप्रैल, जो कि 31 मार्च 2021 के बाद आती है, तो क्या जो अभी 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट बनेंगे उसमें ये डिस्क्लोजर्स आएंगे या नहीं आएंगे, लेटेस्ट वाले? एक आंसर आया मेरे पास. आई वुड रिक्वेस्ट टू अदर मेंबर्स आल्सो प्लीज गिव द आंसर. Three or four answer came. Someone has mentioned no, not applicable for 2020-21. Someone mentioned yes, it will come. Someone mentioned it will come in 2021-22, or someone has mentioned it is only to director report to be in new format, other can be in the old format.
So we can see one more answer. Yes, it will applicable only in financial year 2022. So we can see we are here 170 professionals. हम 170 में से 10 लोगों ने आंसर दिया है और उन 10 के आंसर्स भी आपस में डिफरेंट हैं। तो अगर अब हम देखेंगे तो हम प्रोफेशनल तो लाख की कैटेगरी में है, लाख की लिमिट में है, वो नंबर्स में है, और सभी को कितना कंफ्यूजन होगा, कितने और आंसर उन लोगों ने सोचे होंगे। जब हम में से 10 लोगों ने, हम 170 लोगों में से 10 लोगों ने 3 डिफरेंट आंसर सोचे हैं। तो so now this is different. This is the thing कि आंसर एक्चुअल में क्या होगा। आंसर एक्चुअल क्या है, एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल आंसर है क्या, इसीलिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए हम अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है क्या, एक्चुअल डेट क्या है, एक्चुअल इंप्लीमेंट कब से होगा। Someone information change in audited report mentioned from which date? Only clause G was deferred, which was someone more mentioned it will applicable from the 2021 for the financial year 2021-22. So now let's discuss this answer. All three above mentioned amendment, अभी मैं ऑडिटर वाले को भी लेके चलता हूँ, इसको मैं सेपरेटली बताता हूँ। Shall be applicable to the company for the financial year start or after 1st April 2021. Therefore, all these amendments shall affect the financial statement as of 31st March 2022. तो मिनिस्ट्री ने जो अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया, they have mentioned these provisions shall be implemented with effect from 1st April 2021. हम जो फाइनेंशियल्स बना रहे हैं या डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हैं या ऑडिटर्स रिपोर्ट बना रहे हैं, वो कौन से पीरियड की बनती है? 31 मार्च के पीरियड की बनती है, ना कि 1 अप्रैल के पीरियड की। तो जो 31 मार्च को जो लो था ही नहीं, उसको 1 अप्रैल की कंपनी की फाइलिंग में वो लो कैसे इंपोज किया जा सकता है? 31 मार्च को लो था, 31 मार्च तक तो अलाउड था, पर अब नहीं तो कैसे ले जा सकते हैं? तो दो आंसर इज दैट। अब हमारा जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि 21-22 पे लगेगा या 20-21 पे लगेगा। तो जो ये अमेंडमेंट आए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की फाइलिंग पे लगेगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो फाइलिंग चल रही है उसके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट वन मोर थिंग, एक होता है कि अमेंडमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही अगले साल है तो हम अगले साल देखेंगे, अब इसे क्यों इतना सोचना, क्यों इतना ध्यान देना। दूसरा होता है कि अमेंडमेंट्स तो आए हैं, हमें अगले साल की रिपोर्ट में देने हैं, बट इस साल इस अमेंडमेंट से रिगार्डिंग जो भी न्यू कंप्लायंसेस आए हैं, हम पहले उन्हें मैनेज कर लें, उन न्यू कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें, उन न्यू स्कीम्स को, न्यू वर्क को, सबको उनको स्ट्रीमलाइन करें। तो दिस इज द स्टेप। तो इसीलिए वी कैन से कि जितने भी जो भी अमेंडमेंट है ये 31 मार्च 21 से एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये 1 अप्रैल 2021 से ही होंगे। तो 31 मार्च 2021 की जो बैलेंस शीट बनेगी, जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी, जो ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, वो अर्लियर परफॉर्मा में अर्लियर डिस्क्लोजर के साथ ही बनेगी। अगर किसी का कोई एप्लीकेबिलिटी से लिए क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। एप्लीकेबिलिटी पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो, बिकॉज जो हमें सबसे कंफ्यूज चीज करती है वो यही होती है एप्लीकेबिलिटी। तो वी शुड ऑलवेज बी फ्री टू फाइंड आउट व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। सो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे वो अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2021, Companies Accounts and Amendment Rule 2021. Again, I will just ask one thing. किसी का एप्लीकेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन कीजिए। एप्लीकेबिलिटी पे अगर हमारा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो
someone has mentioned, sir, it is absolutely clear. Thank you for the motivation, sir. It is clear to all of you. Next आते हैं कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स। इसमें 2 अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, अब someone has mentioned कि सर अगर ये 21-22 की फाइलिंग पे ही एप्लीकेबल होते हैं तो ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन क्यों आया? सर अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में इसी को डिस्कस करता हूँ। तो कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स में ना 2 तरह के अमेंडमेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट है रूल 3 में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट है रूल 3, that is manner of books of account to be kept in electronic mode. कंपनीज एक्ट में सेक्शन 134 रूल 3 में लिखा है कि कंपनी अगर अपने बुक्स और अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना चाहती है तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। इस प्रोसेस और प्रोविजन में ना रूल 3 सब रूल 1 में एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया मिनिस्ट्री ने। प्रोविजो मे बी लुक स्मॉल but it's giving a long impact. Proviso that provided that for the financial year commencing on or after 1st April 2021, every company which has used accounting standard for maintenance of its books and accounts shall be use only such accounting standard which has a feature of। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल 21 से जो फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, ऐसी जो भी कंपनी जिसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऐसी कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, उसको अपना सॉफ्टवेयर में कुछ नीचे मेंशन फीचर्स होने चाहिए। जैसे पहला फीचर, उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की एक होनी चाहिए डिस्क्लोजर। उसमें एक डिस्क्लोजर होना चाहिए क्रेडिट एंड एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड, ensuring that the audit trail cannot be displayed। सो जो पर्पस है इसको लेके आने का, इस प्रोविजन को ऑडिट ट्रेल को लेके आने का पर्पस यही है कि कंपनी 1 अप्रैल से ही अपनी बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, उनमें प्रॉपर एंट्रीज करना स्टार्ट कर दे। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आया, जो 24 मार्च 2021 को रूल आया ना, उसमें तो मेंशन कर दिया कि ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। बट 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ने एक और अमेंडमेंट लेके आए कंपनीज के केस में। ये वाला अमेंडमेंट, ये वाला जो न्यू प्रोविजन को रिमूव नहीं कर रहे हैं कंपनी एक्ट में। तो कंपनीज के केस में क्या है कि अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। और इंडिया में आज के दिन चाहे स्मॉल कंपनी हो, नॉन स्मॉल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, एवरीवन हैव देयर ओन चॉइस। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने किया कि इन्होंने पहले तो बोल दिया कि 1 अप्रैल 2021 से सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, हर कंपनी पे जो अपना सॉफ्टवेयर यूज करती है। और आज की डेट में 99% कंपनी, 99.99% कंपनीज जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट किसी का भी फिजिकली मेंटेन नहीं होता होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिकली ही आज की डेट में मेंटेन होता होगा। As you all are the chartered accountant, you all are the 180 chartered accountants are here. You must have faced this situation कि सभी बुक्स ऑफ अकाउंट जो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, चाहे टैली से या किसी और सॉफ्टवेयर से। तो इस केस में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट इंडिया की सभी कंपनीज पे अकाउंटिंग ट्रेलिंग का सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल से 2021 से एप्लीकेबल हो गया था। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गई मिनिस्ट्री के पास कि जस्ट 7 डेज में कैसे ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो, कैसे 7 डेज में ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो, कैसे 7 डेज में पूरे इंडिया में कॉर्पोरेट्स को, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाए टू यूज दिस अकाउंटिंग ट्रेल। तो इस शॉर्ट टाइम को देखते हुए मिनिस्ट्री ने इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया है 1 अप्रैल 2022। सो मतलब जो अब 1 अप्रैल 2022 से ये मैंडेटरी हो गया है हर कंपनी के लिए
कि वो अपने सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स उसमें हो। फीचर जैसे कि उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि whenever you made any change, delete anything, उसका एक डेट चेंज का एडिट लॉग बन जाए। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं वो चेंज हो जाए, चेंज ना हो। और सबसे मेजर चीज, सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप ऑडिट ट्रेल को डिसेबल कर दो। अगर मैं आज की डेट में टैली की बात करता हूँ बिफोर दिस अमेंडमेंट, उस टाइम की टैली के सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन था ऑडिट ट्रेल का, बट तब से सिर्फ ऑप्शनल था। किसी ने ऑप्शनल चीज थी तो हमने अडॉप्ट ही नहीं की, बट अब मैंडेटरी हो गई तो अब सबको ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ रही है। अब ऑडिट ट्रेल का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल? Audit trail is defined as a step-by-step sequential record which provide evidence of document history of financial transaction at its source. An auditor can trace every step of financial data to a particular transaction, right from the journal ledger to its source to document. So main जो purpose है audit trail का, each and every transaction check करना, each and every transaction के steps check करना कि ये transaction करने के बाद सॉफ्टवेयर में चेंज तो नहीं हुई है, कुछ डिलीट तो नहीं हो गया, वो सब चीजें चेक करना is the work of audit trail. ऑडिट ट्रेल के बेनिफिट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, स्ट्रेस फ्री ऑडिट, इजी एरर करेक्टिंग एंड द टाइम सेविंग। Whether this amendment is applicable to all company or exemption is given to some companies. So anyone can answer this? सर अभी तो इसको डेफर्ड कर दिया गया ना दिवेश सर, और दूसरा ये आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पहली एप्लीकेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की तरफ, या फिर 100 करोड़ का एक कुछ लिमिट एक्सपेक्टेड है कि जो आने वाला है। बिल्कुल सर, बिकॉज क्या था, अभी 24 मार्च को एकदम से अमेंडमेंट लेके उन्होंने बोल दिया 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ 6-7 दिनों में एप्लीकेबल करना इतनी बड़ी मार्च पॉपुलेशन पे, कॉर्पोरेट्स पे पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने 1 साल के लिए तो डेफर कर दिया। और एक बात है, अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसी आती है, जैसे अब ये अमेंडमेंट है, इसका पर्पस है कि कोई फ्रॉड ना हो ट्रांजैक्शंस में, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ऑडिटर जब ऑडिट करे तो उसको सब कुछ पता हो कि ये एंट्री में कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों चेंजेस हुए हैं। तो इनका भी पर्पस नहीं है कि ये स्मॉल कंपनीज को जाके पकड़े, स्मॉल कंपनीज के ऑडिट ट्रायल्स को देखें। इसलिए जैसा कि अभी जगजीत जी ने बोला, डेफिनेटली ये 1 अप्रैल 2022 तक अभी डेफर हो गया है कि अभी हमारे पास 1 साल है, तो मे बी इसमें मिनिस्ट्री एक लिमिट लेके आए कि, या एक टाइप ऑफ कंपनीज के लेके आए कि लाइक फॉर स्मॉल एंड ओपीसी को छोड़ के सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, कुछ ऐसा लेके आ सकती है। तो लेट्स सी, नाउ वी आर हैविंग अ 1 ईयर, बट द पर्पस ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस कि अभी से हमें अपने क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट्स को आदत डाल देनी चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर में डिसेबल का ऑप्शन है, उस डिसेबल के ऑप्शन को यूज ही ना करें, उसको एबल करके ही उस ट्रांजैक्शंस को देखें। So as 2% mentioned कि as on date कोई exemption नहीं है, definitely as on date उन्होंने कहीं exemption नहीं दी कि इस कंपनी को करना है, उस कंपनी को करना है, but it is expected कि फ्यूचर में ऐसा कुछ आएगा। एक क्वेश्चन आया, what would be the applicability of account and audit rules? अब सर अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स के लिए अभी हम बात करते हैं, अभी हम अकाउंट रूल्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट रूल्स में 2 अमेंडमेंट हैं, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज वेरी क्लियर कि जो 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव होगा। अब आते हैं सेकंड अमेंडमेंट पे। सेकंड अमेंडमेंट है रूल 8 में, दैट इज रिलेटिंग टू द मैटर इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट इन रूल 8 सब रूल 5 ऑफ द टू क्लोजेस एक्ट। तो रूल 8 क्या था? जो कंपनीज अकाउंट रूल्स है ना, उसमें अकाउंट सेक्शन है, इसमें एक सेक्शन है 134। According to this section 134, every year every company have to prepare director's report as per disclosure mentioned under section 135. So जो 134 में जो disclosures है, सिर्फ वही देना डायरेक्टर रिपोर्ट में इनफ नहीं है। रूल 8 में भी जो डिस्क्लोजर्स लिखे हैं वो भी हम आज तक डायरेक्टर रिपोर्ट में देना पड़ता था, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी, बिकॉज स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी पे ये एप्लीकेबल तो होते नहीं थे।
तो स्मॉल कंपनी और 1% को छोड़ के सभी पे रूल 8 एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्मॉल एंड 1% के लिए तो मिनिस्ट्री ने एक अलग ही रूल निकाला हुआ है डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल के लिए, दैट इज रूल 8A। तो अगर स्मॉल कंपनी की या ओपीसी की डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है तो अब तो हमें 134 सेक्शन रूल 8 फॉलो ही नहीं करना है। बट जब अदर देन स्मॉल की बनती है तो हमें डेफिनेटली 134 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी हो जाते हैं। सो बोर्ड रिपोर्ट में 2 अमेंडमेंट लाए। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल मेंशन इन इट्स रिपोर्ट द एप्लीकेशन डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन मेड और any proceeding pending under the insolvency bankruptcy code during the year under review with status as the end of the financial year। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर आईबीसी में कोई पिटीशन लगाई है या किसी ने कंपनी के अगेंस्ट लगाई है, ड्यूरिंग द ईयर उसका क्या स्टेटस था, अलोंग विद आज की डेट में क्या स्टेटस है, उसके बाद ही कंपनी को अलाउड है, मिनिस्ट्री अलाउड करती है और वहां से जाना, और उसके बाद ही इसमें डायरेक्टर रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो जाएगा। अब पहली चीज तो अगर हमारी कंपनी का कोई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में केस चल रहा है या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में केस हमने डाला है तो उसका ड्यूरिंग द ईयर और उसके एट द एंड ऑफ द ईयर के स्टेटस को हमें मेंशन करना मैंडेटरी है डायरेक्टर रिपोर्ट में। सेकंड, द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन डन at the time of one-time settlement and valuation done while taking loan from the banks or financial institution along with the reason thereof। दूसरा हमें कंपनी को ये भी डिस्क्लोजर देना है इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में 2 न्यूज डिस्क्लोजर ऐड हो गए हैं। अब क्वेश्चन आता है whether above mentioned amendment in director report required to be covered in director report prepared for financial year 2021। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। सो आप लोगों का क्या व्यू है? above mentioned amendment in the director report required to be covered in the director report for financial year ending 31st March 2020। और एक बार दोबारा डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट चाहिए सर। हाँ, यही वाला पॉइंट ना सर, तो इसी पे मैं क्वेश्चन भी दोबारा पूछूंगा ताकि क्वेश्चन दोबारा पूछने से क्या रहेगा कि एक मिनट मैं इसको चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन को डाल देता हूँ ताकि स्क्रीन के साथ चैट बॉक्स में भी लोगों को थोड़ा इजीली दिखता है। अब क्वेश्चन ये है, डायरेक्टर रिपोर्ट में अमेंडमेंट करना है, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर ऐड हो गए हैं, 2 नए डिस्क्लोजर डाल दिए हैं 11 और 12। पहली चीज, ये अमेंडमेंट आया है रूल 8 में। जो रूल 8 है सेक्शन 134 का, वो ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता है। तो मतलब सबसे पहले ये डिस्क्लोजर के लिए क्लियर है कि हमें ओपीसी और स्मॉल कंपनी में डिस्क्लोजर देना ही नहीं है। अब बात आती है कंपनीज अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, उनमें ये डिस्क्लोजर देना है। बट अब क्वेश्चन है, जो हमारा 31 मार्च 2021 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट तो हम बनाएंगे अगस्त सितंबर में, तो क्या उसमें हमें ये डिस्क्लोजर देना है या नहीं देना है? हमारे पास कुछ चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। वन मेंशन नो, अदर मेंशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इट इज एप्लीकेबल। एनी अदर व्यू, किसी के और भी व्यू की एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बिकॉज आज जो हमारा पर्पज है इस वेबिनार का, हमें क्लियर करके जाना है कि क्या अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट का इफेक्ट हमारी कौन से ईयर की रिपोर्ट में जाएगा और कौन सी ईयर की रिपोर्ट में नहीं जाएगा। तो इसलिए अगेन एंड अगेन आई विल से कि आई विल आस्क द क्वेश्चन, आप सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ। सो जो बात है 31 मार्च 2021 की, अब जैसे 2 अमेंडमेंट आए इस अमेंडमेंट, इस एक्ट में सेटिंग कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स। अकाउंट अमेंडमेंट रूल में 2 अमेंडमेंट, एक ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग, एक डायरेक्टर रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो ऑडिट ट्रेल वाला तो हमने डिस्कस कर लिया कि मिनिस्ट्री ने जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन लाया था
कि ऑडिट ट्रेल वाला अमेंडमेंट तो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा, बट जो ये डायरेक्टर रिपोर्ट का है ये एप्लीकेबल हो गया, ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। 2021 से ही ये इम्पैक्ट हो जाएगा, 2021 से ही ये इम्पैक्ट में आ जाएगा। तो अगर फाइनेंशियल ईयर अगर ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट तो हमें 31 मार्च 2021 की बनानी है। तो डायरेक्टर रिपोर्ट जिस डेट की बनानी है उस डेट पे तो डिस्क्लोजर था ही नहीं, तो इसका डिस्क्लोजर भी हमें फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2022 फिनिश होगा उसके बाद में देना है, इस साल की डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं देना। Applicable for the notes show. Okay. Amendment are applicable as director report are dated 1st April. So 1st April से जो amendment आई, ये amendment हमारा 31st मार्च से जो amendment आ जाते हैं उनका इफेक्ट लेते हैं, 1st April का नहीं लेते हैं। अब किसी का क्वेश्चन है, the income tax and service tax department came with the amnesty scheme. Is it required to disclose? सर अभी अगर हम डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं तो डायरेक्टर रिपोर्ट हमारी बनती है सेक्शन 135 सबसेक्शन सेक्शन 134 रूल 8 से, और 134 रूल 8 में कहीं भी एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं की हुई है। सेकंड क्वेश्चन, whether these amendment applicable to director report of every company or exemption are given to some class of companies। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो रूल 8 है डायरेक्टर रिपोर्ट का, ये 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे लगता ही नहीं है। तो जब ये 1% कंपनी है और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता तो उनको डेफिनेटली एग्जम्पशन मिली हुई है, उनको छोड़ के किसी को भी एग्जम्पशन नहीं मिली हुई है इस प्रोविजन में। So hope we are clear with the company's account amendment rule। अकाउंट अमेंडमेंट रूल में आई थिंक किसी की अब कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल। तो अकाउंट अमेंडमेंट रूल में जो 3-4 क्वेरी थी वो तो हमने डिस्कस कर ली है साइमल्टेनियसली, अगर किसी की और भी आती है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई क्वेरी नहीं आई है अभी, चलो कुछ नहीं होता, हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भी किसी की आएगी। Second amendment of valuation is not understand, okay? उन्होंने मेंशन किया the detail of difference between the amount of valuation done at the time of one time settlement। IBC के अंदर अगर कंपनी है, उसने कंपनी ने कोई वन टाइम सेटलमेंट किया है कंपनी के रिवाइव करने के लिए, तो उसके लिए जो वैल्यूएशन निकाली, फिर कंपनी ने जो वैल्यूएशन निकाली किसी बैंक से लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है तो कंपनी को रीजन देना पड़ेगा कि जब कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट में पे करना था तब वैल्यूएशन कुछ और थी, और जब कंपनी ने लोन लेना है तो वैल्यूएशन कुछ और है, तो ये डिफरेंशिएट क्यों है, इसका रीजन कंपनी को देना पड़ेगा अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में। ये थे हमारे कंपनीज अकाउंट रूल्स। डेफिनेटली बहुत कुछ कंपनीज अकाउंट रूल में उन्होंने नहीं चेंज किया है, बट छोटी छोटी चीजें भी बड़ी इंपैक्ट करती है, जैसे कि आप ऑडिट ट्रेल, वो तो अच्छा है मिनिस्ट्री का कि उन्होंने 1 अप्रैल से नहीं लगाया, वरना पता चलता पिछले 4 दिन पहले ही ऑडिट ट्रेल स्टार्ट हो गया है और एज ए ऑडिटर हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज और बढ़ जाएगी। सेकंड अमेंडमेंट है कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल। इसमें जो अमेंडमेंट आया है रूल 11 में आया है, और रूल 11 बोलता है मैटर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो 24 मार्च की जो सेकंड अमेंडमेंट है वो है ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स, और ये ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स आए हैं 24 मार्च 2021। 24 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा कि ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। पर ऑन द 1 अप्रैल जब मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन लेके आई थी कि ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 2022 से यूज कर लेना, सेम टाइम कंपनी ऑडिटर्स रूल्स पे भी अमेंडमेंट लेके आएगी। जो ऑडिटर अमेंडमेंट रूल्स बन रहे हैं ये वाले, ये कंपनीज पे इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2022 से, अभी ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। तो रूल 11 बात करता है कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देना चाहिए अदर देन सेक्शन 143।
तो इन्होंने क्या किया, रूल 10 में क्लोज डी था उसको तो डिलीट कर दिया और उसकी जगह 3 क्लोज डाल दिए। डिलीट किया एक क्लोज, उस एक क्लोज को रिप्लेस करके 3 नए क्लोजेज उसने डाल दिए मिनिस्ट्री ने। जो डिलीट किया उसको पढ़ लेते हैं एक बार। 11D था, whether the company had provided requisite disclosure in its financial statement as holding as well as dealing in specified bank note during the period from 8th November 2000 to 30th November 2016, and if so, whether they are in accordance with the books of accounts। तो जब नोटबंदी हुई थी, जो स्पेसिफिक बैंक नोट्स की बात हुई थी, उस टाइम का डिस्क्लोजर आज तक चल रहा था, तब से लेके वो डिस्क्लोजर तो ऑडिट रिपोर्ट से 1 अप्रैल 22 से हटा दिया है, उसकी जगह 3 नए डिस्क्लोजर डाल दिए। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। जो जी पॉइंट है, whether the company has issued the such accounting software। अभी हमने ऊपर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात की थी, ऑडिट ट्रेल की। इस जी पॉइंट में ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि कंपनी ने प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रेल मेंटेन की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डायरेक्टर्स की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने चेक कर लिया है, उन्होंने लिख दिया अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में, या उन्होंने सॉफ्टवेयर चला लिया है, वो इनफ है। उन्होंने तो चला ही लिया है, बट ऑडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर को ये डिस्क्लोजर भी अपनी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। दूसरा डिस्क्लोजर, whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with 123। तो जैसा कि वेबिनार शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि आजकल मिनिस्ट्री बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर्स पे डाल रही है। वो सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट करके नहीं, नोटिस सेक्शन नंबर तक डाल के मिनिस्ट्री ऑडिटर्स के ऊपर बर्डन इंक्रीज कर रही है, ऑडिटर्स पे रिलायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो वन साइड आई विल से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट फील प्राउड कि एक तरफ आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ रही है, सेकंड तरफ वर्कलोड बढ़ रहा है, बिकॉज अब ये ऑडिटर रिपोर्ट में मांग रहे हैं whether dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with 123। अब ऑडिटर को लिखना है कि क्या कंपनी ने 123 कंप्लायंस किया। उसके लिए एज ऑडिटर पहले तो हमें 123 सेक्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 123 बिलोंग करता है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड से, और डिविडेंड देने के लिए कंपनी को बहुत सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। तो एज अ ऑडिटर अब 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भी अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएं तो आपको इन पे डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर कि यू आर अवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 123। थर्ड डिस्क्लोजर, whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than disclosing the notes to account, no fund had been advanced loan invested by company to any other person or entity include foreign entity। The understanding, whether recording in writing or otherwise, that the intermediary shall whether directly or indirectly lend invest to any other person or entity identified in manner served by the behalf of the company or provide any guarantee security like। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी ने आगे लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, गारंटी दी हुई है, चाहे वो कंपनी ने अपने बोरोड फंड में से दी हो, अपने शेयर प्रीमियम फंड में से दी हो, कंपनी ने किसी भी फंड में दी हो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी ने एडवांस तो दे दिया, लोन तो दे दिया, इन्वेस्ट तो कर दिया जब किसी थर्ड पर्सन को या फॉरेन एंटिटी को। तो उस केस में अब ऑडिटर को चेक करना है कि आज जिस कंपनी को आपकी कंपनी ने लोन दिया है उसने किस पर्पज से उसको यूज किया है। क्या उसने फर्स्ट चीज बिजनेस पर्पज से यूज किया है, क्या आपने जो दिया है लोन 185 के अंदर सही था या नहीं था। इन सब चीजों को रेफर करते हुए इस पॉइंट पे आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा इन द ऑडिटर रिपोर्ट कि ऑडिटर ने कंपनी ने जिस पर्पज से लोन दिया था उस पर्पज से यूज हुआ या नहीं हुआ। फर्दर क्या ये लोन किसी ऐसे पर्पस इलीगल पर्पस से तो यूज नहीं हो रहा है कि कंपनी ने लोन दिया और वो चैन के थ्रू आगे से आगे सर्कुलेट हो जाए। तो इन सभी चीजों पे व्हाटएवर द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर जिस एक्सटेंट तक जा सकता है उस एक्सटेंट तक जाकर ये चीज उसे चेक करनी ही पड़ेगी। The understanding whether recording in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly lend investor in the person entity
identify internal also by the behalf of the company or provide guarantee security like on behalf of the union territory union beneficial. So अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्लीज क्लियर दिस क्लॉज। इस क्लॉज को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। कंपनी ने किसी को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट दिया, पहली चीज ये होना चाहिए कि जिसको भी दिया वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करे, बिकॉज एज ऑडिटर हमें लिखना है कि कंपनी ने प्रॉपर्ली यूज किया है। सेकंड, जिसको दिया वो ऐसा ना हो कि वो हमारा इंटरमीडिएरी हो और हम उसके थ्रू आगे कहीं ये लोन एडवांस पहुंचाना चाहते हैं। वो खुद इस लोन को एडवांस को अपने बिजनेस पर्पस से यूज करेगा। वो इस लोन एडवांस को आगे लोन देने के लिए, एडवांस देने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज नहीं करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। If auditor is not of both companies, how will verify the facts and whether document will require to verify the type of fund loan has been used legitimately? See, trust में, societies में auditors तो properly कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो बहुत बार जो ऐसा होता है, जैसे अभी सबका क्वेश्चन है कि अब क्या कंपनीज को प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा उन्होंने फंड्स को प्रॉपर्ली यूज किया या नहीं किया। इंटरमीडिएरी का यहाँ मतलब क्या है, किसी ने पूछा है। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए हमारी कंपनी है, कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया, कंपनी बी ने कंपनी सी को आगे लोन दे दिया, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया। तो जो कंपनी बी है बीच की, वो इंटरमीडिएरी है हमारी, और जो कंपनी ए है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। सो ऑडिटर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी कि ऑडिटर को चेक करना है कि लोन प्रॉपर्ली जिस पर्पस से दिया था यूज हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। इसी के साथ एक और डाला, whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief, other than as discussed in notes to account, no fund has been received by the company from person entity including foreign entity with the understanding whether recorded in writing otherwise, but that will directly land invest any the person entity or manner provided guarantee security like behalf। अभी ऊपर वाले पॉइंट में बात किया था जहां कंपनी ने लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट दिया है। इस पॉइंट में मैं बात करूंगा जहां कंपनी ने लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट लिया है, क्या उसको प्रॉपर्ली यूज किया है या नहीं किया है, और ऑडिटर को डिस्क्लोजर देना है। बेसिक ऑफ सच ऑडिट, बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस नॉट हैविंग कम टू नोटिस दैट एनी कॉज एंड बिलीव रिप्रेजेंटेशन ऑन 1 और 2। तो ऑडिटर्स के ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज काफी डाल दी गई है। एक और क्वेश्चन है, इवन इफ द ऑडिटर ऑफ द बोथ द कंपनी, हाउ कैन ऑडिटर शेयर डाटा ऑफ वन कंपनी विद शेयरहोल्डर अनदर कंपनी कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, अब ये होता है, कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया, कंपनी बी ए देखना चाहती है भाई कंपनी बी ने उसको प्रॉपर्ली यूज किया है या नहीं किया है। डेफिनेटली ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी कोई भी कंपनी अपना डाटा शेयर नहीं करेगी, बट एटलीस्ट कंपनी एक डिक्लेरेशन तो ले सकती है कंपनी बी से कि उसने अपने बिजनेस पर्पस से यूज किया है। उस डिक्लेरेशन को एज ऑडिटर हम कंपनी से ले सकते हैं, टू सेफगार्ड अस, टू सेफगार्ड कंपनी, टू सेफगार्ड द अदर कंपनी। नेक्स्ट question, it's been the auditor of advancing company need to check the record of intermediary. Yes, up to the extent it is possible they have to check. If they are not satisfied with the checking, they have to take a declaration from the auditor regarding a company regarding the same. अब क्वेश्चन आता है कि जो अभी ऊपर हमने अमेंडमेंट डिस्कशन किया ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड, वो क्या सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल है या कुछ कंपनीज को उसमें भी छूट दी गई है। How by the declaration of the borrowing company discharge the obligation of the auditor? See sir, I also know कि by the declaration एक responsibility discharge नहीं होती है, बट प्रैक्टिकली आपके पास वे आउट भी नहीं है कि आप चेक करो कि सामने वाली कंपनी ने अपने बिजनेस पर्पस से यूज किया है या उसने बिजनेस पर्पस से यूज नहीं किया। तो ऐसे केसेस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जहां डिस्क्लोजर देना पड़े तो व्हाट एवर डॉक्यूमेंटेशन वी कैन डू, हमें वो डॉक्यूमेंटेशन भी करनी चाहिए। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर, हमें वो इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। सो ये जो अमेंडमेंट है ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड 24 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन किया कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2021 से एस्टैब्लिश हो जाएगा।
बट 1 अप्रैल 21 को एक नोटिफिकेशन और आया, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है इस प्रोविजन की 1 अप्रैल 2022। अब जो ये न्यू ऑडिटर क्लोज एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होंगे। अब someone is mentioned that means the report will have to give access, you have to give this disclosure also. Yes, definitely आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो रिपोर्टिंग है तो आप इसको भी डाल सकते हो उसमें। किसी का एक और मैसेज है। तो ये हमारे पॉइंट से ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड। ऑडिटर रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ 4 छोटे-छोटे चेंजेस किए हैं कि 3 न्यू डिस्क्लोजर लगा दिए, 1 डिस्क्लोजर को हटा दिया गया है। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये प्रोविजंस हमें क्लियर हो गए हैं या अभी भी हमारे माइंड में कुछ डाउट है? लाइक इट कि काफी सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे इस प्रोविजन पे, तो अभी भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए। एक क्वेश्चन आया है, काइंडली समराइज। अगर मैं समरी कर दूं इस प्रोविजन की ऑडिटर रूल, तो समरी ये है पहली चीज कि जो रूल 11 का क्लोज डी था वो हट गया है और ईएफजी नई क्लोज आ गए हैं। ईएफजी में से एक क्लोज में आपको डिस्क्लोजर देना है कि डिविडेंड के सेक्शन का प्रॉपर फॉलो कंप्लायंस किया है नहीं किया। दूसरे में आपको देना है कि आपने ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली मैनेज किया है या नहीं किया है। तीसरे में आपको देना है कि लोन बोरिंग जो आपने दी थी वो बिजनेस पर्पस से आके यूज हो भी रही है या आपने ली थी वो भी प्रॉपर्ली आप यूज जिस पर्पस से ली थी हो रही है नहीं हो रही है। ये हमारे नए डिस्क्लोजर्स बन जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट के। तो इसमें अब किसी का क्वेश्चन? So I think कोई इसमें क्वेश्चंस नहीं है। Can we recapitulate this? यहाँ पे can you clarify please this query की recapitulate का मीनिंग क्या है यहाँ पे आपकी क्वेश्चन से, so that I can try to give the answer of this question also. So ऑडिट रिपोर्ट के आपने सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड सेकंड हमने जो किया था क्या बोलते हैं और डायरेक्टर रिपोर्ट के भी सारे डिस्क्लोजर्स रीड कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज शेड्यूल 3। revisit the changes, can we revisit the changes? Yes, definitely अभी हमने दोबारा डिस्कस कर ही लिए हैं जो भी चेंजेस हैं। मैं 2 मिनट ब्रीफ ले लेता हूं। अब आप बोल रहे हैं तो फर्स्ट अमेंडमेंट था, 3 अमेंडमेंट आए हमने बोला, एक है कंपनीज ऑडिटर रूल, एक है कंपनीज अकाउंट रूल, एक है शेड्यूल 3। अभी तक हमने शेड्यूल 3 डिस्कस स्टार्ट नहीं किया है। जो ऑडिटर रूल अकाउंट रूल थे इसमें 2 अमेंडमेंट थे, एक ऑडिट ट्रेल का, दूसरा डायरेक्टर रिपोर्ट में। ऑडिट ट्रेल वाला 1 अप्रैल 22 से इंप्लीमेंट होगा, डायरेक्टर रिपोर्ट वाला 1 अप्रैल 21 से हो गया। फिर आते हैं हम ऑडिटर रिपोर्ट पे। ऑडिटर रिपोर्ट में 4 अमेंडमेंट थे और वो अमेंडमेंट थे रिलेटिंग टू इंक्रीज इन डिस्क्लोजर। तो ऑडिटर रिपोर्ट बनती है रूल 11 के अकॉर्डिंग। रूल 11 में डिस्क्लोजर नंबर डी को तो रिमूव कर दिया, ईएफजी 3 नए डिस्क्लोजर लगा दिए। 3 में से एक उस चीज से रिलेटेड है कि ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, दूसरा इस चीज के कि डिविडेंड के कंप्लायंस प्रॉपर किए हैं या नहीं, तीसरा इस चीज के कि हमने कोई मनी लैंड किया है या बोरो किया है तो प्रॉपर्ली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई है क्या नहीं हुई है। तो एक बार और मैंने ये सारा डिस्कस कर दिया है। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मन में मत रखिएगा, डिस्कस कीजिएगा, इससे क्या क्लैरिटी और मिलेगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट इज रिलेटिंग टू द शेड्यूल 3। जैसा कि मैंने लिखा है शेड्यूल 3 मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। शेड्यूल 3 में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। The Ministry of Corporate Affairs issued the notification on 24th March. उसमें नोटिफिकेशन इशू करके शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट कर दिया और ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 21 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देखो सभी जगह इंप्लीमेंटेशन का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा नहीं ये क्वेश्चन पूछने की कि अब जो बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी नए डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 21 से।
तो जो 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये डिस्क्लोजर देने हैं या नहीं देने हैं? गाइस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। 4 आंसर आए हैं अभी तक, 9। 1 आया है यस, 5 9। सो सभी का आंसर 9 ही आया है। सो अब हम भी इस पॉइंट पे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ने बोला कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। मिनिस्ट्री ने बोला कि आपका ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 21 से। मतलब ये जो डिस्क्लोजर देने हैं ये हमें देने पड़ेंगे 21-22 की जो बैलेंस शीट बनेगी। 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है हमें। अभी जो 31 मार्च 21 के लिए जो बैलेंस शीट बन रही है, जो अभी जो 31 मार्च 21 फिनिश हुआ है, उसके लिए जो बैलेंस शीट बन रही है उसमें ये डिस्क्लोजर्स नहीं देने हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शेड्यूल 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 किस चीज से रिलेटेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 AS 2006। डिवीजन 2 कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2015 इंडियस रूल्स 2015। Division 3 financial statement of NBFC financial statement are drawn up in compliance. Schedule 3 3 parts में divided है। Schedule 3 3 पार्ट में divided है। फर्स्ट पार्ट डिवीजन 1 AS जिस कंपनी पे AS लगता है। सेकंड पार्ट डिवीजन 2 जिस कंपनी पे AS IAS लगता है, इंडियस लगता है। थर्ड पार्ट डिवीजन 3 जो एनबीएफसी पर लगता है। तो जो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोजर्स बताए हैं या बैलेंस शीट के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट्स बताए हैं वो आपके लगेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के ऊपर। पर्पस इसका क्या है? देखो ऐसा था कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में ऑडिटर्स रिपोर्ट में बहुत अमेंडमेंट किए, बाकी सारे प्रोविजंस में भी बहुत अमेंडमेंट किए, बट डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में कभी भी नहीं अमेंडमेंट किया। डायरेक्टर्स रिपोर्ट सॉरी बैलेंस शीट में अमेंडमेंट बहुत कम किए। तो एक सिंक्रोनाइज करने के लिए कि जो डायरेक्टर रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, एक सिंक्रोनाइजेशन में अमेंडमेंट हो, उसके लिए अमेंडमेंट किया है। So let's discuss brief on amendment to schedule 3 division 1 to the act for companies whose financial statement are required to be accounting standard. उससे पहले मेरे पास 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑडिटर रिपोर्ट डिस्क्लोजर आल्सो विल बी नॉट बी एप्लीकेबल फॉर 21-22। सर जो ऑडिटर रिपोर्ट का एप्लीकेबल होगा ना वो होगा 1 अप्रैल 2022 से। सो 22-23 के लिए जो ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी उसमें हमें ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स हैं। किसी और का क्वेश्चन ऑन एप्लीकेबिलिटी? बिकॉज जब से ये 24 मार्च से ये रूल आए हैं ना, 24 मार्च से जब से ये रूल आए हैं, आई हैव सीन कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोफेशनल से आ रहे हैं वो एप्लीकेबिलिटी पे आ रहे हैं कि कौन सा प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होगा, कौन सा प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मैं बार बार इससे वेबिनार में तो डिस्कस करता ही रहूंगा कौन सा पॉइंट कब से एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन में मैंने राजेश जी को शेयर कर ही दी है, तो आप लोग इसको भी पढ़ के एनालाइज कीजिए कि कौन सा प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर के रूल्स है तो एक साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब जब से कंपनी अकाउंट रूल्स थे उसमें ऑडिट ट्रेल का अलग डिस्क्लोजर था और डायरेक्टर रिपोर्ट का अलग। ऑडिट ट्रेल वाला तो इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 22 से, डायरेक्टर रिपोर्ट का हो चुका है 1 अप्रैल 21 से। सबसे पहला अमेंडमेंट जो बैलेंस शीट में हुआ है, राउंड ऑफ।
फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 21 तक राउंड ऑफ करना वॉलेंट्री था, ऑप्शनल था। फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ फिगर अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 द टोटल इनकम ऑफ कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज बेसिस। शेड्यूल 3 में राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन पहले भी थे बट तब ऑप्शनल थे, तो ऑप्शनल थे तो कोई फॉलो करता था, कोई फॉलो नहीं करता था। बट अब 1 अप्रैल 21 से जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें इन्होंने शेड्यूल 3 के फिगर्स में भी अमेंडमेंट कर दिया है, राउंडिंग ऑफ के फिगर्स में भी अमेंडमेंट कर दिया है। ठीक है, 31 मार्च 21 की जो बैलेंस शीट बनेगी उस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट पे तो डेफिनेटली इनका इंपैक्ट आएगा। और राउंड ऑफ कैसे करना है, अगर लेस देन 100 करोड़ रुपीस की आपकी टोटल इनकम है तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 भी कर सकते हो, 1000, lakhs, मिलियन और डेसिमल। और 100 करोड़ से ज्यादा है तो डायरेक्टली लाख, मिलियन, करोड़ और डेसिमल्स। तो उस केस में 100 और 1000 में भी डिनोमिनेट नहीं करना है। सो गाइस, इट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन कि अभी से ही जो 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बन रही है राउंड ऑफ करके हैबिचुअल हो जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट पे। 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में आपको कंपैरेटिव फिगर देनी पड़ेगी 31 मार्च 21 की। तो या तो आप 31 मार्च 20 में जाके 21 की फिगर्स को भी इसी प्रोविजन में बना लो, या आज ही आप 21 की बैलेंस शीट इसी फिगर्स में बना लो, तो जब 22 के साथ लगेगी तब 2022 में उसमें डिफरेंस नहीं बचेगा। अब ये तो था राउंडिंग ऑफ करने के लिए जनरल अमेंडमेंट। अब हम एडिशनल अमेंडमेंट आती है, एडिशनल डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर, इस पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंपनीज एक्ट में हमें पता है कि कंपनीज एक्ट में जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो वो जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग बनाते हैं तो आप डायरेक्टर रिपोर्ट बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स में सबसे पहले एक डिस्क्लोजर देते हैं शेयर कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द शेयर कैपिटल। तो जो शेयर होल्डर 5% से ज्यादा होल्ड करता है उसकी शेयर कैपिटल के लिए तो आप अमेंडमेंट देते हो। आप लोग डिस्क्लोजर देते हैं ना 5% से ज्यादा शेयर कैपिटल के लिए, कि ऐसे कौन कौन से शेयर होल्डर है जो 5% से ज्यादा हमारी शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। बट इसके अलावा कोई शेयर कैपिटल के ऊपर तो और कोई डिस्क्लोजर हमें नहीं देना होता था टिल नाउ। अब इन्होंने मेंशन किया आप वो 5% वाला तो दो, एक और डिस्क्लोजर दो, द नोट्स ऑफ शेयर कैपिटल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल मेंशन डिटेल ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर अलोंग विद चेंजेस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अब आपको शेयर होल्डिंग के लिए शेयर कैपिटल की फिगर्स नहीं देनी है, आपको अब शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स की भी फिगर देनी है। और किस फॉर्मेट में देनी है, सीरियल नंबर, प्रमोटर का नाम, कितने शेयर होल्ड करता है, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर, कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में इसका कितना परसेंट है, और ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हुआ है तो कितने परसेंट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है, बढ़ा है, घटा है, व्हाटएवर, पर ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ है। तो अभी तक तो ऐसा कोई डिस्क्लोजर था ही नहीं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, अब ये नया डिस्क्लोजर इन्होंने ऐड कर दिया। उसके साथ भी कुछ पॉइंट ऐड किए कि यहाँ मैनेजमेंट शैल गिव डिटेल्स ऑफ सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। मान लो कंपनी के पास इक्विटी शेयर भी है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है, 6-7 क्लासेस के शेयर्स है। तो आपको 6-7 जितनी क्लासेस ऑफ शेयर्स है उन सभी के लिए ये टेबल बनानी पड़ेगी सेपरेट। इक्विटी शेयर के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, प्रेफरेंस में भी डिफरेंट क्लासेस के लिए आपको अलग ये टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि 31 मार्च 22 की जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ चेंज shall be computed with respect to the number at the beginning of the year and issued during the year first and then with respect to the issue। अब इसमें पॉइंट में कहता है
अब इस पॉइंट में वो ये बोल रहा है कि आपके ड्यूरिंग द ईयर भी अगर जितने परसेंटेज चेंज हुई है उसका भी इम्पैक्ट आपको देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? आप लोगों को शेयर होल्डिंग तो देनी है, बट सबसे पहले यहाँ प्रमोटर का मीनिंग क्या है? प्लीज आंसर कि प्रमोटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर। हाँ, someone has mentioned promoter का मीनिंग है who start the business and who has an idea of business. So एक पर्सन ने आंसर दिया है who start the company. सेकंड ने आंसर दिया है who is engaged in incorporation of company. किसी का और कोई व्यू? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इफ अगर मुझे इस पॉइंट पे 2-3 मिनट लेने भी पड़े तो डेफिनेटली आई वुड टेक, बिकॉज यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए हु इज प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होता है? किसी ने मेंशन किया सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, किसी ने मेंशन किया फाउंडर ऑफ द कंपनी। ये सब डेफिनेशन बिल्कुल सही थी। अल्टीमेट बेनिफिशियरी वुड बी प्रमोटर, प्रिमिनरी वर्क इंसिडेंटल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। दैट्स गुड कि काफी लोगों ने आंसर दिया, पार्टिसिपेशन किया। द प्रमोटर आर द इनिशियल सब्सक्राइबर, किसी ने लिखा जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में लिखा, जिसका कंट्रोल होता है कंपनी पे, जो डायरेक्टर भी हो सकता नहीं हो सकता, इनिशियल सब्सक्राइबर। तो अब इन आंसर्स को अगर हम रीड करते हैं, हम सब इन आंसर्स को रीड कर पा रहे हैं, मोस्टली आंसर ये आए कि जिस पर्सन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, या जो फाउंडर है, या जो सब्सक्राइबर है। बट ऐसा नहीं है एक्ट में। ये डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं, अगर 1956 एक्ट होता ना, मैं यही मानता कि ये प्रमोटर होते हैं। बस आज की डेट में प्रमोटर की मीनिंग ही टोटली डिफरेंट है। मैं नीचे दिखाता हूं अभी डेफिनेशन क्या है, फिर हम डिस्कस करते हैं। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज नेम एज इन प्रोस्पेक्टस। प्रमोटर मीन्स पर्सन जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है। अब आप बोलेंगे प्राइवेट कंपनी ने तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो नेम कैसे लिखेंगे? फिर उन्होंने बोला और is identified by the company in annual return in section 92. आप सभी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं एमडीटी 7 कंपनीज की। एमडीटी 7 में भी ऑप्शन आता है ना, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर कितनी है। आप किसी पर्सन को तो वहां शेयर होल्डर प्रमोटर में दिखाते हैं, किसी को नॉन प्रमोटर में दिखाते हो। जिस पर्सन को आपने प्रमोटर में दिखाया है वो पर्सन आपका प्रमोटर माना जाएगा। कोई मतलब नहीं है उसने कंपनी बनाई या नहीं बनाई, वो सब्सक्राइबर था या नहीं था, उसने प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स किया नहीं किए। पहली सिचुएशन, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिख दिया वो प्रमोटर है। अगर प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा तो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिख दिया। आपने एनुअल रिटर्न में भी किसी को प्रमोटर नहीं दिखाया, देन द पर्सन हु हैज कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदरवाइज। ऐसा पर्सन जिसका कंपनी पे कंट्रोल है, चाहे डायरेक्ट कंट्रोल हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे शेयर होल्डर हो या कुछ और हो। थर्ड, in accordance with whose advice, direction, instruction the board of director of the company is accustomed to act. जिसके एडवाइस से, डायरेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं। सो ये है प्रमोटर की डेफिनेशन। तो जब तक हमें डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी तो हम डिस्क्लोजर कैसे देंगे? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब आप लोग इस साल देख लीजिएगा कि आपके प्रमोटर कौन है जो आप एनुअल रिटर्न में जिनका नाम मेंशन कर रहे हो। तो 31 मार्च 22 की जब बैलेंस शीट बनेगी तो उनकी आपको प्रॉपर्ली शेयर होल्डिंग पैटर्न देना पड़ेगा विद दिस फॉर्मेट, सीरियल नंबर, नेम, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ शेयर एंड चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज हमें देनी पड़ेगी। क्लियर ऑन दिस पॉइंट? प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज क्लियर। सेकंड पे आते हैं। सेकंड डिस्क्लोजर इज
ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल, ट्रेड पेबल्स के लिए एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। नीचे आके देखते हैं, हम ट्रेड पेबल्स का डिस्क्लोजर देते आए हैं बैलेंस शीट्स में, अब हमें इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर to 2 ईयर, 2 ईयर to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। MSME vendor, MSME creditor, other creditor, disputed dues of MSME, disputed dues of other creditors। अभी तक हम ट्रेड पेबल्स का डिस्क्लोजर देते हुए आए हैं, बट ट्रेड पेबल की एजिंग हमने कभी ऐसे नहीं की थी बैलेंस शीट्स में। अब हमें जो ट्रेड पेबल्स की एजिंग करनी है वो हमें इस फॉर्मेट में करनी पड़ेगी कि लेस देन 1 ईयर के कितने हैं, 1 to 2 इयर्स के कितने हैं, 2 to 3 इयर्स के कितने और 3 से ज्यादा कितने, और इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा कौन सा एमएसएमई है कौन सा नहीं है, कौन सा एमएसएमई के साथ डिस्प्यूटेड है कौन सा नहीं है। तो ये देख के आपको समझ आएगा कि मिनिस्ट्री कितना ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले रही है कॉर्पोरेट से और प्रोफेशनल से। So the company therefore required to provide aging schedule for trade payables due for the periodicity of 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 or 3 more than 3 year. This include MSME, disputed due to MSME, other dues and disputed dues. So this is schedule. इस शेड्यूल को देख के किसी का कोई क्वेश्चन, अब देखो इससे क्या क्लियर होगा। एक हमने पिछले 2 सालों से एक MSME 1 फॉर्म फाइल करते हैं, उसमें हम यही लिखते हैं ना कौन सा ऐसा वेंडर है जो एमएसएमई रजिस्टर है और जिसकी हमने पेमेंट 45 डेज में नहीं किया है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एमएसएमई वेंडर है जिसकी 1 साल से पेमेंट नहीं किया है, 1 से 2 साल से नहीं किया, 2 से 3 साल नहीं किया है। अब मैं बोलता हूँ कि ये कॉलम जो है एमएसएमई, मैं इसके इस वाले कॉलम में एक फिगर लिख देता हूँ 1 to 2 ईयर में। इट इज अ बिग डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज की 1 से 2 साल से हमने कोई अमेंडमेंट 1 से 2 साल तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की है और एमएसएमई की 1 से 2 साल तक हमने कोई नहीं की है, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। तो दिस इज डिफॉल्ट, तो उसको मिनिस्ट्री बहुत इजीली ग्रैब कर सकती है, उसको बहुत इजीली चेक कर सकती है। तो इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। 2 क्वेश्चन आए, इतने मैं उन्हें ले लेता हूँ। In case of a company where the wife is the shareholder and director, but her husband run the company, how to verify that he is a promoter? First thing, अगर आपने एनुअल रिटर्न में बोल दिया कि वो वाइफ जो है वो प्रमोटर है, तो आपको कुछ वेरीफाई नहीं करना है, वो प्रमोटर मान ली जाएगी। बट आपने बैलेंस शीट में बोला, उस बैलेंस शीट में किसी को प्रमोटर नहीं दिखाया, तो फिर आप सेकंड पॉइंट पे आ जाओगे। सेकंड पॉइंट में बोलोगे हु हैज कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब जो ये पॉइंट होता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनीज एक्ट 1956 से लेकर आज तक ये चीज हमेशा प्रूव करने पे होती है। जैसे आपने बोला हस्बैंड कंपनी चलाता है लेकिन शेयर होल्डर डायरेक्टर वो है, तो अगर वो प्रूव कर दे कि हस्बैंड इज कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, ये प्रूव होता है, देन हस्बैंड शैल बी कंसीडर्ड एज अ प्रमोटर। बट एज अ प्रोफेशनल आई विल गाइड यू कि सबसे बेटर है आप डिस्प्यूट में जाओ ही मत, अपने एनुअल रिटर्न 97 है उसमें स्पेसिफिकली डाल दो कि भाई ये हमारा प्रमोटर है, वहां पे क्लैरिफाई करके चलो तो कोई इशू ही नहीं आएगा कभी भी आगे वाले दोनों पॉइंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether previous year figure is also required, sir? Definitely schedule 3 हमेशा previous year figures के साथ ही बनता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने राउंडिंग ऑफ में सजेस्ट किया कि इसी साल से आप इसको अडॉप्ट कर लो, सेम आई वुड रिक्वायर सजेस्ट टू एवरीवन कि जो ट्रेड पेबल एजिंग है इफ पॉसिबल आप इसी ईयर से अडॉप्ट कर लो। बिकॉज क्या जब 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब भी ये सारी फिगर 31 मार्च 21 की तो देनी पड़ेगी, और अगर आज से अडॉप्ट कर लेंगे, आज ही ये फिगर सब मेंटेन करके चलेंगे, तो उस टाइम हमें 31 मार्च 21 के लिए इशू नहीं आएगा। Someone has mentioned trade payable under India's include operational trader like employed and their benefit are above 3 years to be disclosed. सर जैसा कि अभी ये सामने आप शेड्यूल देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बोल दिया है कि चाहे एमएसएमई को या अदर किसी का भी हो, आपको सबको देना पड़ेगा, तो सबका डिस्क्लोजर तो हमें देना ही पड़ेगा। थर्ड अमेंडमेंट इज द ट्रेड रिसेबल एजिंग शेड्यूल।
इन्होंने सिर्फ ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल नहीं बनवाया है, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल भी बनाया है। इसमें डाल दिया लेस देन 6 मंथ, ट्रेड पेबल में सीधा लेस देन 1 ईयर था, नाउ डाल दिया लेस देन 6 मंथ, 6 month to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year और more than 3 year। अब इसमें फिगर्स कैसे चाहिए? Undisputed trade receivable considered goods, undisputed trade receivable considered doubtful, disputed trade receivable considered good, disputed trade receivable considered doubtful। They are asking lot of detail from the companies कि कंपनीज को पहले से बहुत सारी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी। तो दे आर गोइंग विद द सेल्फ डिस्क्लोजर बाय द कंपनीज। जो मिनिस्ट्री ने मोड अडॉप्ट किया है ना, वो मोड है सेल्फ डिस्क्लोजर बाय द कंपनीज। कंपनी खुद अपने ये सारे डिस्क्लोजर करती जाएगी, सो दैट मिनिस्ट्री को जहां जिस पॉइंट पे चेक करना होगा वो चेक करेंगे, जहां जिस पॉइंट पे उन्हें इश्यू क्रिएट करना होगा वो नोटिस भेजेंगे। whatever thing they will require to do, they will do that thing। How we are clear with the rounding of provision, shareholding pattern of promoter, aging schedule of trade payable and aging schedule of trade receivables। एक क्वेश्चन और है, previously only micro and small MSME disclosure were required, here MSME has given। Yes, now they are very clear, you have to give disclosure of the MSME, and MSME include micro, small, medium, micro B, small b, medium b। Fourth amendment, title deed of immovable property not held in name of company। The company shall provide the detail of the immovable property whose title deed are not held in the name of company in prescribed format। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि immovable property है, उसकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, तो कंपनी को उनकी डिटेल भी अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज वेदर कंपनी इज अ लेसी एंड द लेसर एग्रीमेंट इज डुली एक्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी। कंपनी को ऐसी सारी इमोरल प्रॉपर्टीज की डिटेल्स देनी पड़ेगी, कंपनी को ऐसी सारी इमोरल प्रॉपर्टीज की डिटेल देनी पड़ेगी जिनकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है। बट अगर कंपनी किसी केस में लेसी है और लेसर लेसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है किसी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। और कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी किसी के साथ जॉइंटली होल्ड किया और टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, तो जितना एक्सटेंट तक कंपनी का शेयर वहां पे है कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Someone has mentioned if we have court order presumed to buy out, at this point definitely I also have to check because अभी recently 24th मार्च को ये amendment आए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज हम इसमें नहीं भी डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उनपे हमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो डेफिनेटली एक साल का टाइम है, 31 मार्च 22 पे लगेगा, तो डेफिनेटली ICSI विल कम अप विद द गाइडेंस नोट ऑन द सेम कि वो ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस आंसर राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर, बट आई विल आल्सो चेक, इफ आई विल कम टू नो आई विल अपडेट यू। Second is MSME means business who are holding certificate of MSME or according to turnover of the business। जो MSME का मीनिंग है ना, MSME का मीनिंग तो सिंपल है, ऐसी एंटिटी जिसने MSME में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। डजंट मैटर टर्नओवर एंड बोन, अगर आप MSME में रजिस्टर हो तो आप कवर हो जाओगे। Someone mentioned if lease for 100 years। सर अगर लीज पे है और लेसर लेसी एग्रीमेंट किया हुआ है तो उन्होंने एग्जम्प्ट ही किया डालने से, तो आपको मेंशन ही नहीं करना पड़ेगा। फिफ्थ डिस्क्लोजर, disclosure of revaluation of asset, where the company have revalued its property, plant, equipment, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer as defined in the 2। As we know, Companies Act में अगर आपको कोई भी वैल्यूएशन करनी है ना किसी भी पर्पस से, जैसे कि मैं बोलता हूँ एसेट की रिवैल्यू कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, आईबीसी में जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट में कोई भी वैल्यूएशन करनी है ना, तो कंपनीज एक्ट में एज पर दिस कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल, सिर्फ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन कर सकता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अलावा कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता। तो अगर कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करवाई है,
तो डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाई है या नहीं करवाई है। Disclosure number 6. This is also a very important disclosure. Disclosure on loan advance to director, KMP and related parties. The disclosure shall be made where loans and advance in the nature of loans and guarantee to promoters, KMP, related parties, either separately or joint with any other person that are repayable on demand की condition पे उनको दिया है, या कोई कंडीशन ही नहीं लिखी थी रीपेमेंट पे और पीरियड ऑफ रीपेमेंट पे। कंपनीज एक्ट में हमें पता है एक सेक्शन है 185, वो क्या बोलता है, कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, डायरेक्टर्स के रिलेटेड पार्टी को लोन नहीं दे सकती। तो बहुत बार होता है कंपनीज लोन दे देती है डायरेक्टर्स को भी, केएमपी को भी, रिलेटेड पार्टी को भी, किसी कंडीशन में एग्जम्पशन में फॉल करके या कोई कंप्लायंस करके, बट अभी तक उसका कहीं डिस्क्लोजर नहीं था स्पेसिफिकली। अब मिनिस्ट्री ने क्या किया, मैनेजमेंट को अपनी बैलेंस शीट में ही लिखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने किसी डायरेक्टर के एमपी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है या एडवांस दिया, और दिया है तो इस फॉर्मेट में उन्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। टाइप ऑफ बोरोवर, वो प्रमोटर है या डायरेक्टर है या केएमपी है, रिलेटेड पार्टी है। अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन है एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, उस पर्सन को कितना दिया है, और कंपनी के टोटल लोन्स में उस लोन का कितना परसेंटेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज हियर, या रिलेटेड पार्टी का क्या मीनिंग है। सर इसमें वही AS 18 वाला फॉलो होगा ना सर? AS 18। अब और किसी का व्यू कि यहाँ रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है। एक आंसर और आया है AS 18। What will the position in case of NBFC, उस पर भी आते हैं। कोई और व्यू, या रिलेटेड पार्टी का क्या मीनिंग हो सकता है। हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं सर, ताकि सबको बहुत क्लैरिटी मिल जाए इन चीजों पे। हम सिर्फ डिस्क्लोजर्स ना डिस्कस करके, हम रिलेटेड पार्टी की जो हम यहाँ बात करते हैं ना, कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन डिफरेंट है, AS 18 में डिफरेंट है। कंपनीज एक्ट में जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है इन कंपैरिजन टू AS 18 बहुत छोटी है। यहाँ जो मिनिस्ट्री ने लिखा है ना, आप ये एवरीवन कैन रीड इट, इट इज मेंशन एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रिलेटेड पार्टीज है ना, उनके बारे में हमें यहाँ डिस्क्लोजर देना है। AS एक्ट 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर हमें यहाँ नहीं देना है। तो बाकी तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सब जगह AS 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी लेते हैं, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही रिलेटेड पार्टीज लेनी पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। किसी ने लिखा रीवैल्यूएशन डन इन करंट ईयर ओनली। अगर रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होनी चाहिए सर। व्हाट इज केएमपी? सर जो केएमपी का मीनिंग कंपनीज एक्ट में बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, MD, WTD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, CEO shall be considered as the KMP. What will be the position in case of NBFC? Sir, NBFC fall in division 3. Division 3 के amendment we will try to cover. अभी हम division 1 पूरा cover कर रहे हैं। So this is the 6th disclosure we have to give. Now let's move to the 7th disclosure. डिटेल ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्थ। अभी तक ऐसा कंपनी को ना ही ऑडिटर रिपोर्ट, ना ही डायरेक्टर रिपोर्ट, ना ही बैलेंस शीट कहीं पे लिखना पड़ता था कि कहीं कंपनी बेनामी को कोई केस चल रहा है क्या, बेनामी प्रॉपर्टी में, बेनामी एक्ट में कोई चल रहा है क्या, नहीं था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब कंपनीज को एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द एंटिटी अंडर बेनामी एक्ट, द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्लोजर शैल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द कंपनी शैल डिस्क्लोज detail of the property including year of acquisition, amount, detail of beneficiary, then reference is made, the property is not in book, then the fact shall be stated। अभी तक ऐसा कोई डिस्क्लोजर ही नहीं था। अब मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि कंपनी के अगर कोई कंपनी के
प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड, कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है और पेंडिंग आया अगेंस्ट बेनामी एक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा? अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं था, बट अब स्पेसिफिकली उस चीज को बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ बोरोइंग, 8th disclosure. Whether company has borrowed from bank, financial institution on the basis of security of current asset, it shall disclose the following: whether quarterly return and statement of the current asset filed by the company with the bank, financial institution are in agreement with the books of account. If not, summary of the reconciliation, reason of material discrepancies. अभी तक क्या होता था? You all are the chartered accountant, are much more knowledgeable than me on this point. Still I am discussing this. अगर आप लोगों का कोई point हो तो I think आपसे भी कोई discuss करना चाहे तो कर सकता है. As per my knowledge, अगर कंपनी ने कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है और वो लोन लिया है बेसिस ऑफ जो सिक्योरिटी है वो कंपनी की करंट एसेट्स है, स्टॉक है कंपनी की सिक्योरिटी, उस केस में क्या था कि कंपनी क्वार्टरली एक रिटर्न देती है, एक स्टेटमेंट देती है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अपनी करंट एसेट्स की डिटेल का, क्योंकि ये सभी कंपनीज देती है, क्वार्टरली एक स्टेटमेंट देती है। अगर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर करंट एसेट पे लोन लिया है, क्वार्टरली एक स्टेटमेंट देती है करंट एसेट्स की डिटेल का। पहले क्या होता था, जो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट था, कंपनी स्टॉक के अकॉर्डिंग कुछ भी दे देती थी, बट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी उसको मैचअप करती थी। बट अब इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया, कंपनी ने जो अपने सर्टिफिकेट क्वार्टरली दिए हैं आर इन एग्रीमेंट टू बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्ली होने चाहिए। अगर नहीं होते, समरी ऑफ रिकंसिलिएशन एंड रीजन फॉर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। अब आपने क्वार्टरली सर्टिफिकेट दिया बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने सर्टिफिकेट दिया, अब दोनों में डिफरेंस है, वहां पे रिकंसिलिएशन में डिफरेंस है, कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, तो कंपनी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। Someone has mentioned the book, for book of books the value is lower of the cost and net realization value, while for bank is market price, which generally met maybe higher. राजेश जी, जगजीत जी, I would request you कि सर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जनरली ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, जो अतुल पुरी जी का क्वेश्चन है। Books. तो कहीं ना कहीं ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट भी बन जाता है, राइट। क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिर उसमें जो कंपनी के जो नोट्स ऑन अकाउंट है कहीं पे वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, और हमारी जो क्वालिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड बॉक्स है रिपोर्ट वाला, वहां पर उसको किया जाता है, और कारों की अगर एप्लीकेबिलिटी है तो उस हिसाब से फिर एक और रिप्लाई आएगा सर। बिकॉज अभी जैसा सेकंड क्वेश्चन में है, दिस मींस स्टॉक स्टेटमेंट विल हैव टू बी चेक्ड विद द बुक्स, तो डेफिनेटली अब जो हमारा क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट भी होगा वो भी हमें बुक से चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर कहीं रिकंसिलिएशन में या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको उसको प्रॉपर्ली उसके ऊपर डिस्क्लोजर कंपनी को देना पड़ेगा, और कंपनी डेफिनेटली कोई डिफॉल्ट करती है तो एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर आप लोगों को भी इसको अपने क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्क्लोजर नंबर 9, willful defaulter. Where a company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or another lender, following details shall be given: date of declaration as a willful defaulter and detail of default. अब willful defaulter क्या होता है? Willful defaulter means a person or an issuer who has been categorized as a willful defaulter by any bank, financial institution defined under that act or consortium thereof in accordance with the guidelines of the willful defaulter issued by the Reserve Bank. रिजर्व बैंक ने अपनी एक प्रॉपर willful defaulter की डेफिनेशन इशू की हुई है, गाइडलाइंस इशू की हुई है। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंक, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर आपको willful defaulter डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको उसकी भी डिटेल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी। Someone has mentioned these disclosures are required to given notes in accounts. Yes sir, these all disclosures are required to given in the notes to accounts of the financial statement. Next,
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज। अभी तक क्या होता था, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने किसी ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, बी कंपनी स्टॉक ऑफ हो गई। अब समझ नहीं आता था, बी स्टॉक ऑफ हो गई तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट में दिखाएं या नहीं दिखाएं, अब मैं मान लूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ऐसा ही क्या होता था, ए की इन्वेस्टमेंट बी में है या बी की इन्वेस्टमेंट भी ए की थी, बी ए की शेयर होल्डर थे, बी स्टॉक ऑफ हो गई। अब ए जब अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेगा मीटिंग का, तो बी के बिहाफ पे किसको भेजे, ऐसी किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, ऐसा कोई डिटेल डाटा ही नहीं था। तो मिनिस्ट्री ने अब ये पॉइंट ऐड किया है ताकि इसके थ्रू मिनिस्ट्री डाटा कलेक्ट कर सकती है। उन्होंने बोला वेयर अ कंपनी हैविंग ट्रांजैक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 248 और 560 ऑफ 1956, कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद देम, नेचर में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, रिसीवेबल्स कितनी है, पेबल्स कितनी है, शेयर कितने हेल्ड किए हैं, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो भी लिख दो, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी। अब इस बेस पे मिनिस्ट्री कैन एनालाइज की कंपनी का स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ क्या रिलेशन है, कंपनी का स्टॉक ऑफ कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो अब स्टॉक ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग भी हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली दे हैव इंक्रीज्ड द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट अलोंग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज़ प्रैक्टिकली मैनेजमेंट्स के साथ बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बनाते हैं, ऑडिटर्स ही बनाते हैं। तो टास्क ऑफ देयर आप लोगों का टास्क बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट से। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स भी हमें ये सब देना पड़ेगा, तो सर जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है ना, वो फाइनेंशियल ईयर एंड की बैलेंस शीट बनती है। लिस्टेड में भी जैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो जरूरी नहीं होते कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बने। तो आपको क्वार्टरली में तो ये सब डिस्क्लोजर नहीं देने पड़ेंगे, बट ईयरली में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विद रजिस्टर ऑफ कंपनी, where any charges or satisfied yet to be registered registrar of company beyond the statutory period, detail or reason to be paid। अब क्या होता है कि कंपनी का कोई चार्ज क्रिएट था, कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट करना था या कंपनी ने कोई चार्ज सेटिस्फाई करवाना था, चार्ज क्रिएट करना था सेटिस्फाइड, कंपनी ने ड्यू डेट में नहीं किया, तो अब कंपनीज को उसकी डिटेल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल ईयर एंड तक कंपनी ने रजिस्टर ही नहीं करवाया। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में कंपनीज एक्ट में प्रोविजन क्या है कि चार्ज 120 दिन में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, 120 दिन में नहीं होता तो आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते हो। तो अब ऐसा है कि 120 दिन निकल गए तो आप कर ही नहीं सकते, 31 मार्च तक भी वो रजिस्टर नहीं होगा, तो आपको बैलेंस शीट में उस पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर नंबर 12, where company has not complied with number of layers prescribed in the 287 the companies the name of the sin। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 186 बोलता है सेक्शन 186 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि कंपनी 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज तक की सब्सिडरी बना सकती है, थर्ड लेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने थर्ड लेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में आज तक कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। अब कंपनीज को रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, ऐसे थर्ड लेयर का उसको नाम, सिन नंबर, कितनी लेयर्स, कितने बियॉन्ड लेयर्स है, रिलेशनशिप, होल्डिंग कंपनी शो डाउन विल बी डिस्क्लोज। तो अभी तक लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती थी, बट अब लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनीज को। डिस्क्लोजर ऑफ रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The amendment required the companies covered under division 1, 2 और 3 to disclose flowing ratio। अब कंपनीज को ये 11 रेशियोज बैलेंस शीट में देने पड़ेंगे, अभी तक ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि द टास्क ऑफ द प्रोफेशनल विल इंक्रीज इन मैनीफोल्ड। अब सभी रेशियोज आप लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे और अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ेंगे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है आपने कैलकुलेट करके लिख दिया कि ये रेशियो है, दे आर आस्किंग कि the company shall explain the item include in the numerator and the denominator। मतलब हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं, उस चीज का डिस्क्लोजर भी कंपनीज को देना पड़ेगा। सो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स इंक्रीज कर दिए हैं, जैसा कि अभी हमने यही देखा है कि 11 नए रेशियोज देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और एक और चीज,
An explanation shall be provided for any change in ratio by more than 25% compared to the preceding year. कंपनी ने लास्ट ईयर में कुछ रेशियोज दिए और उससे नेक्स्ट ईयर में दिए, दोनों में 25% से ज्यादा का डिफरेंस था, तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आया। Next disclosure, detail in respect of utilization of borrowed funds, share premium shall be provided. कंपनी ने अगर कोई बोरो की है फंड, शेयर प्रीमियम है, तो उसको कहाँ यूटिलाइज किया उनका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कंपनी की कोई मर्जर्स की या कोई स्कीम चल रही है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, उसके बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएंगे वो भी नोट्स टू अकाउंट पे देना पड़ेगा। ये सभी डिस्क्लोजर थे रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट। कुछ डिस्क्लोजर उन्होंने नोट्स टू अकाउंट टू द P&L भी डाला है। फर्स्ट इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम, reconciliation of income tax and Companies Act. The company shall give detail of any transaction not recorded in books of account that has been surrendered and disclosed to the income tax during the tax assessment, unless there is immunity for disclosure under a scheme. Also state whether the previously unrecorded income and rated assets has been properly recorded. अब many time क्या होता है कि we know जब black money बोलते हैं या हम cash income बोलते हैं, whatever, कंपनीज बुक्स में शो नहीं करती है, पर इनकम टैक्स की असेसमेंट हो जाती है, कोई रेड हो जाती है, उसमें अगर इनकम टैक्स असेस कर लेता है ऐसी किसी इनकम पे, तो कंपनीज को उस पे टैक्स और पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। बट रीजन क्या होता था, उनको स्टिल बैलेंस शीट्स या P&Ls में वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती थी या नहीं होता था। नाउ कंपनी को स्पेसिफिकली अपने नोट्स टू अकाउंट्स के P&L में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऐसी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या नहीं है कंपनी की। CSR disclosure, where company under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed in regard to CSR activities. अब CSR के रिगार्डिंग P&L में डालना पड़ेगा, कितना स्पेंड करना था ड्यूरिंग द ईयर, कितना कर दिया, कितना शॉर्टफॉल है, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल कितना है, रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, नेचर क्या था जो इन्वेस्ट कर रहे थे। ये सभी डिस्क्लोजर कंपनी को CSR से रिलेटेड भी अपने P&L के नोट्स टू अकाउंट में देने पड़ेंगे। All the disclosure required for 2021 accounts are applicable for 21-22. सर ये सभी डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल होंगे 21-22 के जो अकाउंट्स बनेंगे, अभी 2021 पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। थर्ड, डिटेल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी, वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड एंड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, अमाउंट ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय रिपोर्टिंग डेट, deposit and advances from any person for purchase of these things. These are the certain disclosures which companies are required to give in the balance sheet for the financial year ended 31st March 2022. इन सभी को पढ़ के डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया है कि डिस्क्लोजर बहुत लेवल तक इंक्रीज हो गए हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी इन डिस्क्लोजर्स को देने के बाद। और जब इतने डिस्क्लोजर्स देने हैं तो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल का टास्क, वर्किंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो माय प्रेजेंटेशन इज ओवर हियर। होप व्हाटएवर क्वेरीज वाज देयर ऑफ द मेंबर्स साइमल्टेनियसली हमने सभी क्लियर की है। स्टिल किसी की कोई क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस। नाउ आई विल हैंड ओवर टू द राजेश जी। थैंक यू दिवेश जी, आपने जितने चेंजेस बता दिए मुझे लगता है कि हमें सीए ही दोबारा करनी पड़ेगी, तभी ऑडिट कर सकते हैं। उस हिसाब से फीस तो बढ़ेगी नहीं मुझे लगता है, और करते करते हम एक ऑडिट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये गारंटी है कोई ना कोई चीज छूट जाएगी, या तो क्लाइंट नहीं बता पाएगा या सर बड़ी मुश्किल काम हो गया। एनीवे, आवर राजीव कोहली जी हु इज एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग, आई रिक्वेस्ट हिम काइंडली गिव ए concluding marks and vote of thanks, sir. Over to Kohli, sir. Devesh, thank you for such a elaborate, detailed things. You have solved all the queries और इतना vast resources, massive changes हो गई हैं ऑडिट रिपोर्ट। ओनर सारा ऑडिटर पे चला गया अब, because basically the scapegoat is not to be the auditor कि ऑडिटर ने सर्टिफाई कैसे कर दिया। 15 चेंजेस आपने बैलेंस शीट में कर लिए हैं, प्रमोटर देख के राजी नहीं, and basically transparency is there, then all the things which are not being getting the information is going to be benign, promoter shareholding, stock of companies, etc. Because basically when the company was itself a promoter stock, that those should be written off, so that things are very
because basically the entire thing is कि बैंक को कुछ और रिपोर्ट जा रही थी, कंपनी के लिए और थी, इनकम टैक्स के लिए और थी, और सारी सब कंसोलिडेट करके, ताकि कंसोलिडेशन करके सारे फिगर सामने आ जाए, so all the window dressing and misreporting will not take place. Right, sir. Lots of onerous responsibility for the auditor has gone up many-fold, and the quantum of work has also gone up many-fold. Yes, sir, definitely. Like 11 ratios count करने, 11 ratios अपने आप में जैसे And ratios with a variation or more than 25%. मतलब basically अगर मेरी GP ratio 10% थी और इस बार 13% हो गया, then I have to give a reason 3% कैसे बढ़ गई? Right. That is a quantum, not plus 25. 25% existing ratio. 25%, not 20%. So and audit trail with, because people used to like, sir, Tally की USP होती थी, आप जो मर्जी वाउचर निकाल लो, जो मर्जी डालो. So by default that has been just axed. You can't do it any more of it, sir. And trade payables aging, huge things, because आज की डेट के अंदर मेरी all the things, all the returns will be electronically verified digitally, because one report, other report is a mismatch. You will get a notice from the MCA also, like you are getting an income tax. Right. So thank you very much for such a elaborate and such a